Independence Day to all. So today we all have gathered here to celebrate 80th Independence Day of India. On this day today, India got freedom. It has been 79 years since we got the freedom, and we are developing. This freedom which we all are enjoying has not come so easily. There are the people who have given their blood and sweat for this country. The soldiers, the families, the mothers, sisters who have lost their brothers, who have lost their family to get this freedom today. We must ensure that this freedom, this tricolor which we see in the sky, it has not come without sacrifices of our brave soldiers or the person who has given their lives for the country. Freedom comes with a responsibility. It's not that we are free today. If we are free, we have a responsibility. We have a social responsibility. We have a national responsibility. We have responsibility towards our environment. We have responsibility towards our elders. We have responsibility towards our parents. We have responsibility towards the environment around us. Kids, children, and the youth. You are the future of the nation. You will be building the future. So it's not that we are free. We have to somewhere take the responsibility and ensure that we build this nation and we take it to next level, next height. We are a developing country. We are not yet developed. If we have to reach to that level where America stands today, where France stands today, where other countries stands today, we have to change our lifestyle. We have to change our thought process. We have to start taking the responsibility and doing the duties which are good for our nation. We have to spread the brotherhood. We have to kill this casteism. We have to somewhere avoid doing things which are not good for society. We should take the responsibility for brotherhood, for neighborhood, for elders. We should respect our elders. We should respect our teachers. We should respect our parents. We should keep environment neat and clean. We should throw the garbage on the right place. We should ensure that we do not harm or somewhere damage the national property. These are the things which we can do to build this nation, to take to the next level. They have given the freedom. They have given their lives for this freedom. But somewhere we can give something to the nation. Whatever we can give as children, as youth, as kids, we should give that. So let's place today that we should start taking the responsibility, start respecting elders, start respecting parents, start respecting teachers. We should somewhere remove from our minds that there is no caste. We all are equal, and we should spread this message to all, everyone around us. So with these words, I thank you, and once again, Happy Independence Day. Jai Bharat, Vande Mataram, Jai Hind. प्रबंधक महोदय जी के द्वारा जो बोला गया है आपके लिए कितना अच्छा बोला गया है, लेकिन आप लोग उसके लिए ध्यान नहीं देते हो। देखिए, हमारे विद्यालय के परम आदरणीय प्रबंधक महोदय जी और हमारे सम्माननीय समस्त शिक्षकगण एवं सभी बच्चे, देखो हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी का हम जश्न मनाते हैं। आज 15 अगस्त जो है स्वतंत्रता का दिन है और हम सब लोग स्वतंत्र होने के साथ साथ हम लोगों के मन में और विचारों में वह होना चाहिए जो देश और समाज के लिए हम कुछ करके दिखाएं। हमारे महान वीरों ने जो हम लोगों के लिए जो किया है वो कैसे किया आप सबको पता है। इतने संघर्षों के बाद हम लोग आज जो स्वतंत्रता का दिवस मना रहे हैं वह बड़े
कठिन और तपस्या का परिणाम है। आप सबके मन में ये भाव विचार होना चाहिए कि जो हमारे महान नायकों ने हमारे लिए जो किया है वो जो मुझे भी आने वाली पीढ़ी के साथ वही होना चाहिए, जो सदियों तक ये स्वतंत्रता का जो अलख है ये हमेशा चलती रहे, ये कभी बंद ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। We celebrate our 18th Independence Day. Today is a day to feel proud about the being of part this great nation. Saluting the courage of our nation. Let's keep the three colors flying high. Thank you to everyone. And students, happy Independence Day to all. India got freedom on 15 August 1947. Independence Day, I am honored to share the thought of the day. Our national flag is not just a piece of cloth, it is a freedom, unity, sacrifices of our heroes. Let us please to make our nation proud. Thank you. I have proud Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. Good morning everyone, my name is Yugpradap Singh. Today is 15 August and I wish you all very happy Independence Day. India got freedom on this day in 1947. It is National Festival of India. I love my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. से है न मुसलमानों से है, ये जिस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है। इस मुल्क को तकलीफ है तो बेईमानों गद्दारों से है, बेईमानों और गद्दारों से है। भूल मत करना हमें पापा की परी समझने की, कि भूल मत करना हमें पापा की परी समझने की। इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है, हथियार उठाना भी आता है। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। बस तिरंगा हो कफन मेरा, ये अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। परम सम्मानीय मैनेजमेंट सर, प्रिंसिपल सर, मेरे सभी देवता तुल गुरुजनों, छोटे एवं बड़े भाई बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं साक्षी चौहान क्लास 10th से इस वार्षिक उत्सव में अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ कि देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण क्या है। आज मुझे खुलकर बोलना है और आप सभी को ध्यान से समझकर सुनना है। मैं नहीं मानती राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े होकर गाना ही या वंदे मातरम, भारत माता की जय के जोरों शोरे से नारे लगाना ही देशभक्ति, लगाना ही देशभक्ति। ये वो स्थिति है महोदय जहाँ नीति, नियम और नैतिकता जैसे मूल्यों के धज्जे उड़ाते लोग नजर आते हैं, धज्जे उड़ाते लोग नजर आते हैं। ये वो स्थिति है जहाँ घर में दो सगे भाई भी शांति नवन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते। और जिस देश का युवा व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक जैसे सोशल ऐपों पर सेटिंग, डेटिंग, चैटिंग और फ्लोटिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते हैं। जिस देश के युवा, मुझे तकलीफ तो तब होती है जब देश के इस युवा के कंधे पे जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण एवं समाज की राष्ट्र भावना को जोड़े रखने की। भाई युवा आज हमें पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो मैं इन मौन निद्रा में सोने वाले लोगों से कुछ कहना चाहूंगी कि अभी वक्त है तुम जाग जाओ, ये जिस मूल को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है, इस मूल को तकलीफ है तो बेईमानों गद्दारों से है। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती, आजादी से पूर्व बात कुछ और थी और आज कुछ और है। तब हम झांसी की रानी से लेकर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, नेहरू, महात्मा गांधी को हम देशभक्त कहते थे। परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो कहूँ किसे? परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। एक गरीब बुजुर्ग को दवाई दी जाए वो है देशभक्ति, और एक पत्रकार अपनी पत्रिका को ईमानदारी से निभाए वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं बल्कि विद्या को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए वो है देशभक्ति। और जिस देश का युवा वतन के लिए दूसरों को मारने के लिए नहीं बल्कि पहले खुद मर जाने को तैयार हो वो है देशभक्ति। तो मैं इन देशद्रोहियों को कुछ कहना चाहूंगी कि ये हवा में जहर घोलने वाले फिर चाहे मेरे सारों में बदल जाओ, कि ये हवाओं में जहर घोलने वाले
फिर चाहे मेरे इशारों में बदल जाओ, तुम क्या बदलोगे तस्वीर हिंदुस्तान की शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है, माँ भारती बसती है। अगर मैं बात महिलाओं की करें तो उन्हें आरक्षित नहीं बल्कि संरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि कन्या बाल हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बलात्कार जैसी बातें बढ़ती नजर आती हैं। कि इस वतन की रक्षा का हम बेटियों को भी हक है, कि इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है। और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो, जिसको हमारी काबिलियत पर शक है, जिसको हमारी काबिलियत पर शक है। किसी के लिए खुशियां लाई हूँ तो किसी के लिए गालियां बरसाई हूँ, किसी के लिए खुशियां लाई हूँ तो किसी के लिए गालियां बरसाई हूँ। इस वतन की रक्षा के खातिर मैं भी कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ, कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। और भारत माँ की बेटी हूँ, तैयार हूँ सरहद पर जाकर सीने पर गोली खाने को, तैयार हूँ सरहद पर जाकर सीने पर गोली खाने को। एक माँ बनकर हर दर्द को सहना, एक बहन, बेटी या पत्नी बनकर हर गम को छुपाना आता है, हर गम को छुपाना आता है। और रसोई में बेलन ही नहीं साहब, और रसोई में बेलन ही नहीं साहब, इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है, हथियार उठाना भी आता है। और मैं राष्ट्र निर्माण की बात करूं तो हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब की झोपड़ी को बदलकर उसका अपना घर होगा, उसका अपना घर होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब प्रत्येक किसान के खेत में पानी पहुंचाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाट, राजपूत, मेघवाल जैसे भेदभाव को हमारी सोच से मिटाया जाएगा, हमारी सोच से मिटाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा तब आइंस्टीन बाबा के साथ महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि महापुरुषों को भी पढ़ाया जाएगा, आदि महापुरुषों को भी पढ़ाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। और मैं अंत में किसी शायर की पंक्ति और अपनी आखिरी तमन्ना के साथ वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि काश मेरी जिंदगी में कोई शरद की शाम आए, कि काश मेरी जिंदगी में कोई शरद की शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की। बस जिक्र हो जब शहीदों का, उसमें मेरा भी एक नाम आए, मेरा भी एक नाम आए। कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी पहचान लिख देना, कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी पहचान लिख देना। उठाना तिरंगा झंडा, सीने पर हिंदुस्तान लिख देना, सीने पर हिंदुस्तान लिख देना। और बचे जिसमें लू एक बूंद भी, और बचे जिसमें लू एक बूंद भी, उसे निकालना, माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। I got goosebumps.